Jai Hind दोस्तों, welcome to SSB World. My name is Shreya. I have appeared in various armed forces exams like FCAT, CDS, JAG, and I have cleared all those exams and got recommended. आज मैं आपको अपने वीडियो में इंटरव्यू ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ SSB टेस्टिंग प्रोसीजर एंड यू फेस इट इन सेकेंड स्टेज ऑफ योर SSB. सो बेसिकली इंटरव्यू को जैसे मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था कि इंटरव्यू आपके वाचा से रिलेटेड है और वाचा में आपको एक्सेल करने के लिए ट्रिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं और आपको क्या फॉलो करना होता है. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिक्स टू एस द इंटरव्यू. सो लेट्स बिगिन. अल्टीमेट ट्रिक्स टू एस इंटरव्यू. If it is a test of your heart, the interviewing officer is fairly senior and experienced in the armed forces. While he interacts with you, he visualizes whether you have the essential qualities to be trained to be an army officer, what you have done till date regard to your basic educational performance in exams from 10 to present level. So basically, it is a part of your testing procedure. They test you that whether you are suitable to become an army officer or not. Secondly, they test various OLQs through asking questions. So basically also it is a test of your experience which you have faced till now a date while giving your interview. So जो कुछ भी आपके पिछले टाइम पे हुआ है आपके साथ, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें या जो भी आपकी लाइफ लर्निंग्स या लाइफ स्किल्स रही हैं, वो सारी चीज़ें आपका इंटरव्यू जानना चाहता है आपसे. वो ये सारी चीज़ें थ्रू क्वेश्चनर्स आपसे पूछेंगे और जब आप क्वेश्चनर्स का आंसर दोगे तो वो ये डिसाइड करेंगे कि आपके अंदर OLQs हैं या नहीं हैं, या फिर आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं. ओके, योर अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, योर हॉबीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड एनी अदर इंटरेस्ट इन लाइफ, योर रिलेशन विथ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, सोसाइटी, your general awareness and general knowledge, and your physical and mental fortitude is important facets of his assessment. So as I told you, what are the facets of assessment? Facets of assessment is your personality. Your personality consists of your curricular, co-curricular records, your hobbies, your interest, your past experience, your family, your environment, your surrounding. So आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी अर्निंग क्या है, आपने अपने आज तक के एजुकेशनल लेवल में क्या किया है, आप आगे क्या एस्पायर करते हो, आप अपने पर्सनालिटी को बेटर बनाने के लिए आपने कौन सी हॉबीज़ परस्यू की, कौन से इंटरेस्ट फॉलो किए, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम इन योर फ्री स्पेस, व्हाट activities you like doing in your free space. So all these things are part of your personality and these are the important facets of assessment. The interviewing officer understands and gives you fair benefit for shortcomings or mistakes which you may have committed. Thus, do not try and hide anything. The tendency of lying or making false pretenses is viewed negatively and is easily discernible. So whatever you have achieved, whatever you have done in your life, just say it fairly, just say it honestly. The ultimate thing which they are testing is honest personality or loyal personality, and honesty and loyalty are the two most important things which can never be compromised for any army officer. So basically they are very trained to test you. They are very trained to test you, test your lies, test your experiences. So do not lie to them. Do not falsify yourself. People in terms of boasting themselves, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने के लिए they tend to say lie there. And trust me friends, they are very trained assessors sitting over there. They can judge you within a minute. They can find your OLQs within a minutes. So आप उनसे झूठ मत बोलिए. आपकी कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं, आपका कुछ मिस हैपनिंग आपके पास्ट लाइफ में हुई है, या कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर कोई भी आपके डाउनफॉल्स या शॉर्टफॉल्स हैं, प्लीज़ डोंट हाइड टू दैम. प्लीज़ डोंट ट्राई टू प्रिटेंड एनीथिंग विच यू आर नॉट. आप प्रिटेंड करोगे कुछ और बनने का, बट वहाँ पे वो आपकी रियलिटी कैसे भी पता कर लेंगे. तो अगर आप प्रिटेंड करोगे, जायज़ सी बात है, यू विल टेक मोर टाइम इन थिंकिंग, यू विल बी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर सेइंग. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स. सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी प्रिटेंड मत करो, जो भी है सही सही बोलो. और शॉर्ट कमिंग्स, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. नो वन इज ओनली सक्सेसफुल और सक्सेसफुल फ्रॉम द बर्थ.
So failures and success is a part of your life and everyone experiences it. Try to tell your failures and the way how you overcome it. अपने failures को बताओ, आपने अपने failures को कैसे overcome किया, उस failure से आपकी personality कैसे shape हुई, ये सारी चीज़ें आपको एक positive attitude की तरफ ले जाती हैं. So you have to show that you are not a loser in your life. Okay. Do's of SSB interview. So basically I will give you the tips which you have to hardcore follow in the SSB interview. If you do not follow this, there are much possibility or more chances of you getting not selected as an officer. Okay. So some basics which a candidate must keep in mind while preparing during an interview are followings. Be appropriately turned out for the interview. What do you mean by turn out? Turn out means your mental capacity, your mental attitude. While going for interview, you must be mentally prepared for it. You must be feared or scared from inside. Because if you are tensed, if you are feared, if you are scared, definitely you will say something else. You will not give your whole observation or attention to the questions which interviewer is asking. So योर अटेंशन विल बी डाइवर्टेड. इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस को रिमूव करिए. स्ट्रेस आपको अच्छा परफॉर्म करने में ऐसे ही मदद नहीं करेगा. ओके. लुक स्मार्ट, चीयरफुल एंड एंथुजियास्टिक. सो समवेयर you all know that your dressing speaks a lot about you. Your dressing sense, your attire, your personality, your cheerfulness is everything, is a part of your personality and is everything telling indirectly to your assessor. So my advice to you all would be, please आप cheerful रहिए, have a mild smile on your face. That does not mean that you have to laugh out loud there. You just have to smile. Carry a small smile in your face or a light smile in your face. Also, you have to attire very well. You have to wear the dresses very well. You should not wear the shrink shirt or inappropriate blazers or inappropriate prints or colors. So basically, आपको बहुत अच्छे attire में जाना है, जिससे ये पता चले कि somewhere आप बहुत serious हो इस आर्मी अपने achievements के लिए. Okay. Must remain happy and calm and respond politely to the interviewing officer. Officer's welcome remark. So what do you mean by welcome remark? Welcome remark means somewhere interviewing officer will greet you like good morning, please come in, please sit down. So you don't have to be a blank face there. You don't have to make a blank face there. Instead you have to respond him politely. अगर आपको कोई good morning या good evening या whatever वो आपको wish करते हैं, welcome करते हैं, तो आपको भी उतने ही enthusiasm के साथ उन्हें reply करना है. कहीं भी उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आपका जोश बाकी सारे बच्चों से कम है या आप कहीं ना कहीं अंदर से चीयरफुल नहीं हो. बी ऑडिबल बट नॉट टू लाउड. अपीयर कीन टू स्पीक एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस. ओके. कीन टू स्पीक एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड इट केयरफुली. कीन टू स्पीक मीन्स ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा और विद इन सेकेंड्स आपको उसका आंसर देना है. कई बार बच्चे सोचते हैं कि जितना जल्दी हमने आंसर दिया उतने अच्छा आंसर हमारा होता है. नो. You take your time, you take 2, 3, 5 seconds, think about the question, prepare your answer carefully, then answer that question. Because आप जल्दीबाजी के चक्कर में कई चीज़ें गलत और inappropriate way में बोल देते हो. तो हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है, हमें जो भी बोलना है सोच के बोलना है, कीनली बोलना है, बट ऐसा भी नहीं है कि जो आपने पॉज लिया है उस क्वेश्चन को समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो. ऑल्सो बी ऑडिबल बट नॉट टू लाउड. कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है बहुत बोल्ड आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ ही फौज में इम्पॉर्टेंट है या आपको इन करती है. आवाज़, वॉइस क्वालिटी और योर वॉइस टोन इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फौजी पर्सनैलिटी. बट इससे आप सही या गलत होगे इसका फैसला नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती तेज़ बोलने के चक्कर में आप अपना गला ख़राब कर लेते हो और सामने वाले को काफ़ी बॉसी या फिर काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हो. तो इस तरह से आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप एक मीडियोकर लेवल पे रहो, आपकी टोन मीडियोकर लेवल पे रहे, आपका रिदम मीडियोकर लेवल पे रहे. तो उस तरह से आपको बात करनी है. ओके. सिट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबली, डू नॉट फिजिट, डू नॉट कीप मूविंग योर हैंड्स एंड लेग्स. कई बार आप टेंशन में या नर्वसनेस की वजह से अपने हैंड्स
हैंड्स जेस्चर, फीट जेस्चर्स को भूल जाते हो. यू कंटिन्यूसली शेक योर लेग्स, यू कंटिन्यूसली शेक योर हैंड्स. आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, आप हिलते रहते हो. तो दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लेस कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस कम दिखाता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. Acknowledge questions being asked by gently nodding your head and maintain eye contact throughout. जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है कि आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनसाइट. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे, अगर आप उनके किसी भी क्वेश्चन आस्किंग पे नॉड नहीं करोगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो. और अगर आप लेस अटेंटिव या लेस कनेक्टेड लगोगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कम होगा इंटरव्यू के आपके ऊपर. तो इसलिए आपको आई कांटेक्ट बनाना है और जो भी पूछें आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है, प्रॉपर नॉडिंग करनी है. ओके. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, पोलाइटली आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन और टू रिपीट द क्वेश्चन. ओके. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि मास्क की वजह से या शीट की वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाए हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अगेन. आप उनसे एक बार पूछ सकते हो कि सर आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज़ रिपीट इट. अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये आपकी हम्बलनेस भी शो करेगा और इससे आपका एक पर्सनालिटी का पार्ट पता चलता है कि आप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रेडी हो. Must be clear about facts, figures regarding your biodata, marks obtained, ranking in competition exam, dates, name, school, institution, teacher, friends. Avoid stating I do not remember and respond as far as possible. आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. Since it is a part of your personality, you have filled the PIQ. आपको PIQ के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए. दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि you do not know the answer of the question, in which there is no harm, but basically you should know about your personality. Try not to avoid personal questions by saying that, sorry sir, I don't know. Because if you don't know about the personal questions, I don't think you would be knowing your personality better. तो आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से जानते हो, इसका निर्णय इससे होगा कि आप अपने सारे पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे लो, क्लियरफुली दे लो. ओके. तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप ये बोल दो सर सॉरी आई डोंट रिमेंबर और प्लीज़ आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड. Large number of questions are normally asked at one go in a sequence. Try and remember all these questions. Attempt the answers them in the same sequence. If you fail to recollect all questions, finish those and remember. Then request to clarify for anything left out. कई बार ऐसा होता है आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि किसका कैसे जवाब देना है. उस रैपिड फायर सेट्स में आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है, आपको सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है, उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है. कई बार ऐसा होता है कि रैपिड फायर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, आप कुछ मिस कर जाते हो. अगर आपको वो याद आता है, आप तुरंत अपने इंटरव्यूअर को बोलो सॉरी सर आई मिस समथिंग एंड देन आई वांट टू आंसर इट. ओके. और अगर आपको कुछ मिस हो गया और याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि सर डिड आई मिस समथिंग. सो आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ मिस ना करो, बिकॉज दैट शोज योर ऑब्जर्वेंट बिहेवियर. Prepare well in general knowledge for the interview. You are expected to be aware about current affairs if asked. Talk about hobbies, participation in games, sports, adventure activities and any other interest. You must have adequate technical knowledge about your hobbies, games you play. You shall get some questions on these. Utilize your time while waiting for interview by reading newspaper and journals available in waiting room. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि before coming to this room what were you doing? तो उसमें आपको अपने आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करना है. आप अगर कोशिश करो कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप कुछ रीड करो, कुछ पढ़ो या फिर कुछ अच्छे टीवी जर्नल्स देखो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, विच शोज़ दैट यू आर कीन टू डेवलप योर नॉलेज. ऑल्सो आप अपने इंटरव्यू में अपनी हॉबीज़ के बारे में, एडवेंचर के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में बात करो. उससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो अपने हॉबीज़, एडवेंचर और इंटरेस्ट के लिए, एंड यू वॉन्ट टू रियली परस्यू दैट. कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इंटरव्यू के पहले घबरा जाते हो, तो घबराना आपको नहीं है किसी भी हाल में. ओके. Don'ts of interview. Okay. Do not be shabbily dressed. As I told you, dressing is very important. So please dress carefully. Do not be under stress during interview. हमें स्ट्रेस में नहीं आना है कैसे भी. Do not discuss the questions asked by interviewing officer. कई बार क्या होता है, आप अपने क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर के डिस्कस कर लेते हो अपने फ्रेंड से, उन्हें आइडिया लग जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या क्या पैटर्न है. दूसरी बात ये होती है कि अल्टीमेटली दे आर योर कॉम्पिटिशन. ओके. You know that you have to be a team player, but ultimately you are also competing with them.
तो उनके आइडिया होने से दे प्रिपेयर वेल एंड दे आंसर वेल, तो कहीं ना कहीं दैट बिकम्स अ ड्रॉबैक फॉर यू. ऑल्सो शेयरिंग इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस आर नॉट अ गुड हैबिट. तो अगर आप ये सारी चीज़ें उनसे शेयर कर लोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा. नेवर लाई और पुट अप अ फॉल्स प्रिटेंस. डू नॉट प्रिटेंड समथिंग एल्स विच यू आर नॉट. If you are well read, it is an advantage. If not, do not pretend to have read books, magazine and newspaper which you have only heard of. कई बार ऐसा होता है टू बोस्ट योर पर्सनैलिटी. बच्चे बोल देते हैं कि हम तो नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और फिर जब उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें नहीं आते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी मच अ ड्रॉबैक फॉर योर पर्सनैलिटी. तो आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है. अगर आप पढ़ते हो तो बताओ, नहीं पढ़ते हो तो बोल दो सॉरी सर आई डू नॉट रीड दिस एंड हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट. Okay, these are the tips also. Watch TV news for updating yourself in candidate lines and waiting room. Remain relaxed and at ease throughout during the interview. Listen to complete questions before attempting to reply. Be truthful and honest while replying to questions. So all these tips you have to follow gently and attentively. Do not reply as has been told to you by the candidates interviewed before. Questions may have had a different perspective. कई बार क्या होता है आपको बताया जाता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ टू आंसर. तो जैसा आपको ब्रीफिंग दी गई है, जैसा आपको बोला गया है, प्लीज़ फॉलो दैट सीक्वेंस, प्लीज़ फॉलो दोज रूल्स. अवॉइड गेस वर्क, बेटर बी पोलाइट एंड से आई डोंट नो सर, आई शैल फाइंड आउट. दिस शोज योर कीननेस टू नो मच, नो इम्प्रूव योर सेल्फ. तो अगर nobody knows everything about all the things which are happening around in world. कई बार आप कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो या आपको नहीं पता होती हैं. हम्बलनेस, पोलाइटनेस के थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हो कि सर सॉरी आई डोंट नो, आई शैल फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू लेटर. Avoid being rigid, restorative, argumentative, overbearing, complacent and stiff throughout the interview. कई बार क्या होता है आप आर्ग्यूमेंट लीड करने लगते हो. इंटरव्यूअर आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आपका स्ट्रेस लेवल टेस्ट करता है और आप उनके ट्रैप में फॉल कर जाते हो. तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू अवॉइड. डोंट कीप मोबाइल, वॉच एक्सेट्रा ऑन पर्सन ड्यूरिंग इंटरव्यू. फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स, दैट इज कैरी मास्क, वाटर बॉटल, ग्लव्स, फेस शील्ड टू द इंटरव्यू रूम. तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है. ब्रीफिंग ध्यान से सुननी है. जो भी ब्रीफिंग आपको GTOs, JCOs या फिर हलदार सर देते हैं, आपको सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है और स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है. ओके ओके, सो these are the tricks which you have to follow. If you like my video, please subscribe it. Please like my video. Please share it so that our knowledge gets experienced or vast. Thank you.